So producers can sell their product not only in the market located within the country but can also compete in markets located in other countries of the world. That was the main motto behind making the world as a one market, so that all the producers and consumers can be connected to each other. They can know the technologies, they can have the experience of the new technologies which was not possible in earlier days. हमें कोई फॉरेन कंट्रीज में एक समय ऐसा था कि अगर कलर टीवी आपको मंगाना पड़ता था तो उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ता, यू हैव टू स्पेशली इंपोर्ट। और वो सोनी का ही कलर टीवी तब आता था, दूसरी कोई कंपनी का इतना ज्यादा कलर टीवी हमारे यहाँ आता भी नहीं था। तो उसको बाकायदा ईस्ट कंट्रीज से, गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता था। वो बाकायदा इंपोर्ट होकर टीवी आता था अगर किसी को चाहिए हो। इन दैट पीरियड इट वॉज 45,000 to 50,000, और वो भी टीवी जो होता था वो 17 इंच का ही होता था, नॉट लाइक दिस 32 इंच, 40 इंच और 55 इंच। वो 17 इंच का टीवी जो बॉक्स वाला होता था वो 45,000 तक तब आता था कलर टीवी। सो इन आवर अर्लियर डेज एक्चुअली। सो नाउ यू कैन सी you can get 32 inch TV 9,000 also, 8,000 also. If you are not getting, if you are not needing smart TV, if you are needing only LED TV, you can get it in 8,000, 7,000 also. So see the change what has happened. And this TV is LED TV, SD monitor, and so many other features. You can connect it to internet and you can go anywhere watching the things on TV. So see the change had happened after we are connected to other economies. So this is what globalization can help. Similarly, for the buyers, import of goods produced in another country is one way, expanding the choice of goods beyond what is domestic produced. So जो कुछ भी आपको डोमेस्टिक प्रोड्यूस में मिल रहा था, डोमेस्टिक मार्केट में मिल रहा था, वो लिमिटेड था, उसमें आपको ज्यादा वाइड रेंज नहीं मिल रही थी। अब जब ये ग्लोबल मार्केट कनेक्ट हो गया है तो क्या हो गया है कि हमारे पास एक बड़ी रेंज आ गई है जिसमें हम चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। सो कंज्यूमर, बायर्स ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू हैव चॉइस एंड टू इंक्रीज देयर चॉइस इन डिफरेंट फील्ड्स। When you order on online, you get categories. After getting the categories, you have so many types of filtration also, so many types of sorting also. In that you can exactly select your requirement, and accordingly that how many products are available they will tell you, and then those products will come which is actually in the extreme framework of your choice only, separate choice, personal choice। ऐसा कुछ कभी नहीं होता था। चाहे वो किसी भी चीज को आप लेकर देख ले, आपको एक्सट्रीम चॉइस मिलती है कि सिर्फ आपको जो पसंद है उतनी ही कैटेगरी का प्रोडक्ट आपके सामने दिखाया जाता है। दिस इज हाउ द टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड द मीनिंग ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, एंड इट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। Then we will discuss little bit about Chinese toys or all the Chinese products. Indirectly, we have to think about all the products, Chinese products we are getting in the market, mainly electronic products, electrical products, and toys and etc. In the earlier days, we were getting the toys which were made by our producers in the local market, in domestic market. China has actually tried to introduce its toys to our market. In the beginning, they have supplied little bit, and they get good response because Chinese toys are in design. They are very much advanced. They are very attractive, and on the other hand, they are very cheap. हमारे यहाँ की टॉयज अगर बन रही है तो समझो 200 रुपए 250 रुपए तक अगर बना रहा है कोई, तो वहां से आने वाली टॉयज हमें 40-50 रुपए में भी मिल जाती है। दिवाली और होली पर ये सब चीजें हम लोगों ने चेंज होते हुए देखी। जो होली पर हमें जो पिचकारियां वगैरह मिलती है, बंदूकें वगैरह मिलती हैं, वो पहले इंडियन जो मिलती थी वो बहुत महंगी होती थी, खरीद नहीं पाते थे। और अब बड़ी से बड़ी पिचकारी भी आप लेने जाए, अगर वो सिलेंडर वाली भी लेने जाते हैं तो वो भी आपको 300, 350, 200, 250 जिस रेंज में आप चाहें उस रेंज में वो मिल जाते हैं। तो दिस इज हाउ दे हैव चेंज्ड द मार्केट, एंड विद इन अ ईयर और टू दे हैव एक्वायर्ड एक्चुअली 70 to 80% of the toys market in India,
एंड नाउ ऑल्सो वेयर एवर वी आर गेटिंग, अभी तो काफी कुछ बैन हो चुका है, इसलिए काफी चीजें हमारे यहाँ नहीं आ रही हैं. आवर प्रोड्यूसर्स आर डेवलपिंग देयर स्किल एंड दे आर डेवलपिंग टॉयज. लेकिन एक समय ऐसा था कि आप कहीं भी मार्केट में चले जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड टॉय सिस्टम में अगर आप देखें, यहाँ तक कि फर्नीचर भी जो है, चाइनीज फर्नीचर बहुत सारे आ गए. बहुत ही वैरायटी के चाइनीज फर्नीचर भी हमारे मार्केट में अवेलेबल थे. नाउ वी आर एलिमिनेटिंग स्लोली all these products because we are not supporting China because it is actually not giving us a proper response as a country. So it is actually spreading hatred, and that's why we are not ready, and we should not support such a country which is actually not having a good relation with our army. If they are fighting with our army, they are killing our soldiers, so that doesn't gives a good idea to have relation with that country. और किसी भी कंट्री को अगर आपको हराना है तो सबसे बड़ा काम हो जाता है कि उसके बिजनेस को हराइए, उसके ट्रेड को हराइए, उसके इनकम को तोड़िए. उससे लड़ने की बजाय अगर आप उससे इनकम उसकी तोड़ देंगे तो काफी कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी. सो you have to harm the country by economically. We don't need to fight. So that is what we can do for China. So they have provided toys and other things to us, and what happened to us? The price has been reduced to 25%, 20% as earlier. 100 रुपए की चीज हमें 25 रुपए में मिलने लगी, तो हमारे पास भी चॉइस आ गई. तो हम लोगों ने भी जो है अपने इंडियन जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट छोड़ दिए, उनको जाने दिया, और हमने उन लोग चाइनीज प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना शुरू कर दिया. सो दिस इज वन वे वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री. वी आर एक्चुअली डैमेजिंग आवर सेटअप. सो दिस इज टू बी अंडरस्टूड. हाउ इंपोर्टिंग गुड्स कैन डिस्ट्रॉय योर सिस्टम ऑफ लोकल मार्केट, योर सिस्टम ऑफ लोकल प्रोड्यूसर्स. ये हमें ध्यान में रखना है कभी भी कोई भी चीज इंपोर्ट करने के पहले. कुछ पैसा ज्यादा लग जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि कंट्री मेड जो चीजें होती हैं उन्हीं को हमें ज्यादा से ज्यादा बाय करना चाहिए. फॉरेन ट्रेड thus results in the connecting the markets or integration of markets in different countries. So all the markets are connected together.